If there is no struggle, there is no progress. By this quotation, it must be clear to you that struggle is the only thing that is required for you to progress or excel in any field. It is your struggle that results into your progress, your overall development. So, good evening everyone. I am Tanya Agrawal from MPPSC Masters, and let's start with our next topic of the day, that is development of public administration as a subject. So, I have qualified prelims more than 5 times, appeared in the interview for 2018, and at present I am giving the mains of 2019 again. So, I have a teaching experience of 5 years, so I can guide you best for your journey of MPPSC. So, let's begin with our today's topic. So, it speaks about the development of public administration. Previously, we have gone through the meaning of administration. In topic 1, we had gone through its meaning, what was its nature, its scope, and its significance. Then, in the topic 2, we talked about its importance in developed and developing societies. Now we are moving on to its devolution, how it evolved as a subject, as a discipline. Okay, so first of all, evolution means unfolding. If we speak in simpler terms, it means from simpler to complex forms. कोई भी चीज कैसे इवॉल्व होती जाती है. आप कोई भी टॉपिक को जब स्टडी करते हैं तो पहला उसका एक इंट्रो पढ़ते हैं, फिर उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके फीचर्स जानते हैं, फिर उसकी यूटिलिटी पे काम करते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे पहलू उसके साथ जुड़ते जाते हैं जो अल्टीमेटली उस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं. सेम वे में कोई भी चीज किस तरीके से बनी और इवॉल्व होते गई, जैसे ह्यूमन बींग्स में अर्ली मैन से डेवलपमेंट होते होते आज कहाँ आ गया है, मॉडर्न सिविलाइज्ड एंड टेक्निकल मैन पे. तो ये क्या है, ह्यूमंस का एवोल्यूशन है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ एज एन एक्टिविटी, तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के जितना ही ओल्ड है. जैसे ही हम कहानी पढ़ते हैं एडम की, तो जो अर्ली मैन थे उनके पास क्या थे, नेचर उनका सबसे बड़ा रिसोर्स था और आर्टिफिशियल कोई भी चीज नहीं थी. तो उस नेचर को बेस्ट यूज करने को अपने मेथड्स अप्लाई करते थे. तो अगर उनको हंगर फील होता था तो वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे. अगर उन्हें रेस्ट करना होता था तो वो क्या ढूंढते थे, कहीं शेड ढूंढते थे. ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किए, अपने मेथड्स डेवलप किए. और ये मेथड्स जब एक ग्रुप फॉलो करने लगा तो वो क्या बन गया, एक मैनेजमेंट एक्टिविटी बन गया. तो अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज एन एक्टिविटी देखा जाए तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन से जितना ही ओल्ड है. अब एज अ सब्जेक्ट या डिसिप्लिन इसकी ग्रोथ कैसे होती है, तो अगर कमिंग टू द स्ट्रेट टू द पॉइंट दैट इसका जो फॉर्मेशन है एज अ सब्जेक्ट या डिसिप्लिन वो बहुत रीसेंट है, 1887, जिसको किसने स्टार्ट किया था, वुड्रो विल्सन ने. अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में लेयर बाय लेयर पढ़ेंगे. अब देखिए, हिस्ट्री को पढ़ना है हमें एक वेस्ट के एस्पेक्ट में या आउटसाइड इंडिया, और दूसरा हम पढ़ेंगे इन इंडिया. ठीक है, तो पहले देखते हैं आउटसाइड इंडिया. उसको मैंने डिवाइड किया 3 फेजेस में, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न. एंशिएंट में प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक और एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स में बताया है गवर्नमेंट के बारे में, उनके अफेयर्स को मैनेज करने के बारे में. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली they have not used the term public administration. Okay, so they were managing things, they were administrating things, but without naming the term.
Later, in the medieval times, Machiavelli wrote the famous book The Prince. He talked about the administrator and the administration. Montesquieu, who belonged to the French Revolution, gave the insight of spirit of laws, but without formally using the word public administration. It was only until 1887 that Woodrow Wilson came up with his essay on the study of administration that the word public administration was coined. Now, in India, Kautilya was much older than Woodrow Wilson and he belonged to very old times. He was the prime minister, a philosopher and guide of Chandragupta Maurya, and he has given one of the most finest work of administration, the Arthashastra, how to manage policy and economy of a place, keeping in mind the Mauryan state. But giving details of the system and naming it are two different things. He gave a detailed view about the hierarchy, the bureaucracy, corruption, land revenue, but never named it. Therefore, he is never given credit, although he has contributed wildly. Now, later on in Ain Akbari, written by Abul Fazl, a historical treatise is given about the administration of Akbar, the great king. And the British period led to a various types of policies and programs that the governor generals came up in the Indian system of administration. So over here we are done with its evolution, that is its history part. Now this is the historical evolution. So over here you can see that public administration evolution occurred in variety of stages. You can use this diagram in your answers. So, firstly, it is politics and administration dichotomy, जो प्रिंसिपल हम वुड्रो विल्सन का भी स्टडी करेंगे. उसके बाद धीरे धीरे डिफरेंट प्रिंसिपल्स इवॉल्व होते गए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के और सबने अपने अपने डिफरेंट व्यू पॉइंट्स दिए. अब जब इतने सारे व्यूज इकट्ठा हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक चैलेंज बन जाएगा. चैलेंज बनने के बाद इसमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि इसे बोला क्या जाए. तो विच लेड टू क्राइसिस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की क्राइसिस हुई एंड लेटर इट चेंज इनटू पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव. लेटर देन दिस कम द सिक्स्थ स्टेज. Over here, consolidation of the subject will take place and finally it will be studied in universities in the form of a subject. So let's begin with the first phase. The year was 1887 to 1926. These were the famous lines by Woodrow Wilson. So in case you get an 11 marker, remember all the points that are being highlighted with red ink are very, very crucial and you have to learn it by heart. Okay, you have to learn it. The way it is written, exactly you have to copy it in your notebook and this will fetch you more marks than other candidates. That administration lies outside the proper sphere of politics. So he was basically speaking about politics administration dichotomy. In that he said that administration lies outside the sphere of politics. Administrative questions are not political questions. So the questions in the administration and that in the politics are different. Although politics sets the task for the administration, it should not be suffered to manipulate its offices. So what the politics does? So the politicians are merely representative of citizens. They have been elected by these citizens and so it is their responsibility to come up with different policies and programs. So after knowing the problems of the citizens, they advise the administration about different issues that the people are facing. Now administration is indirectly responsible to the citizens. So politics provide them with the tasks and it is the duty of the administration to execute these tasks. So there is a demarcation between politics and administration according to whom? According to Woodrow Wilson. His line of thought was further continued by Frank J. Goodnow.
What he said is politics has to do with policies or expressions of the state, whereas administration has to do with its execution. तो एक ही चीज यहाँ पे सिंपलर वर्ड में समझते हैं, एक होती है पॉलिटिक्स और एक होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज के लिए होता है, और पॉलिटिक्स जो होती है वो टास्क को सेट करती है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। ठीक, तो कंक्लूजन क्या हुआ? विल्सन लेड द फाउंडेशन फॉर अ सेपरेट इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयरफॉर ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि अभी तक जितने लोग आएंगे वो क्या कर रहे थे? पॉलिटी को या पॉलिटिक्स को क्या कर रहे थे? एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लेके पढ़ रहे थे। लेकिन विल्सन ही ऐसे थे जिन्होंने बोला कि नहीं, दोनों चीजें क्या हैं? अलग अलग हैं। दोनों के जो टास्क है या मोटिव्स है वो भी क्या है? डिफरेंट है। ठीक, आगे मूव करते हैं। अब आती है नेक्स्ट स्टेज जो है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। अब जैसे जैसे विल्सन के व्यूज आते गए, ये वही टाइम पीरियड था जब वर्ल्ड अभी जस्ट उभरा था वर्ल्ड वॉर 1 के फियर से। उसके बाद टाइम आया रिकॉन्सोलिडेशन का, जिसमें न्यू कंट्रीज भी सामने निकल के आई, न्यू थॉट्स जनरेट हुए, न्यू थिंकर्स और फिलोसफर्स भी जनरेट हुए। तो थिंकर्स और फिलोसफर्स को देखते हुए ये देखा गया कि डिफरेंट पब्लिकेशंस आए लोगों के और उन्होंने डिफरेंट बातें बोली। जैसे विलिबाई ने बोला प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में 1927 में, और इन्होंने ये बोला कि in administration there are certain fundamentals principles of general application analogous to those characterizing any science. So over here he compared science and administration, and he said like there are principles or general for the general application in science in the same way it is in administration. Now this stage reached its zenith when Gulick and Irving came out with their papers of science of administration, and they gave the technique of post-quart. We'll later go through it in detail. Here you should just understand that it involved the planning, organizing, and so a scientific method of planning of things and executing them. That is it. Now, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ये तो क्या था, पूरा साइंटिफिक अप्रोच थी, और कहीं पे भी इसमें ह्यूमन की इंपॉर्टेंस पे फोकस नहीं किया गया। इसलिए उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे वो फोकस करेंगे, किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ो और क्या बना दो? स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स को फॉर्म कर दो। इससे क्या होगा? इकोनॉमी और एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव होगी। अब इन्होंने क्या आर्ग्यू किया? दैट एडमिनिस्ट्रेशन irrespective of the nature and context of work, due to it is having a universal validity and relevancy, they termed it as science. So stage 2 में हमें क्या बताया गया कि ये क्या है? अल्टीमेटली साइंस है। लेटर अब क्या आएगी? एयर ऑफ चैलेंज आएगी। क्यों? क्योंकि पहले तो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की डायकोटोमी बताई गई, दूसरे में इसको साइंस बोला गया। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रिंसिपल्स निकल के आएंगे और इससे क्या होगा? कन्फ्लिक्ट अराइज होगी। इसलिए 1938 से 1947 को एरा बोला गया चैलेंजेस का। यहाँ पे अब बात की गई ह्यूमन रिलेशंस की और बिहेवियरल अप्रोच की। जब बिहेवियरल अप्रोच की बात की गई तब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन निकल के आएंगे एल्टन मेयो, और ये हमें बताएंगे ह्यूमन रिलेशंस के बारे में बाय द इट्स हॉथॉर्न स्टडी इन 1924-32. Okay, so both defining principles of public administration were challenged, as I have already told you over here. Administration cannot be separated from politics because of its political nature and role. And administration is not only concerned with its implementation but its formulation as well. जैसे साइंस में हम स्टडी करते हैं कि हमारे प्लान का क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिव होता है या गोल होता है, और एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। सेम वे में क्या होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स की बात की गई। तो एल्टन मेयो ने बोला ठीक है, मैं एक हॉथॉर्न स्टडी करूंगा जिसमें उन्होंने रोल ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का स्टडी किया और बताया कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी हाई होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे ह्यूमंस के हिसाब से प्लानिंग की जाती है।
ह्यूमंस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर फीलिंग्स, जिनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये थी ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द एरा ऑफ चैलेंज। हर्बर्ट साइमन ने क्या बोला? तो हर्बर्ट साइमन आएंगे और बोलेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे, इट इज, ही कॉल्ड इट एज प्रोवर्ब्स। इन्होंने बोला बिहेवियरल अप्रोच टू मेक इट अ मोर साइंटिफिक वन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, बिहेवियरल अप्रोच की बात करी और बोला कि बिहेवियर अगर डिफरेंट है तो उसका इम्पैक्ट किसमें देखने मिलेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखने को मिलेगा। और पूरे तरीके से पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन की डायकोटोमी को रिजेक्ट किया और बोला एम्पेरिकल अप्रोच अपनाना चाहिए, वैरायटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए, कंपेयर, और फिर एक बेस्ट मेथड को हमें अप्लाई करना चाहिए। ये थे हर्बर्ट साइमन के थॉट्स। नेक्स्ट स्टेज आती है स्टेज क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। ये तीनों स्टेजेस का रिजल्ट थी। इसमें पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे तरीके से रिजेक्ट किया गया। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का वो डोमिनेंस देखने को मिला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की बात की गई, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज की बात की गई। रॉस्को मार्टिन ने बताया कि हम कैसे पॉलिटिकल साइंस के फोल्ड में ही मूव कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस बाय मार्च एंड साइमन ने बिहेवियरल अप्रोच के बारे में बताया। सो एक्चुअली यहाँ पे क्रिएट हो गया बहुत सारा कंफ्यूजन कंफ्यूजन और कंफ्यूजन, जिस कारण से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सनल आइडेंटिटी खत्म हो गई और वो मर्ज हो गया डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के साथ, और उन्हीं के अंदर उसको स्टडी करने लगे। अब बहुत ही क्रिटिकल स्टेज चल रही थी, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। सॉरी, मैं थोड़ा अपना माइक चेक कर रही थी। हाँ, तो डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस टाइम, राइज ऑफ न्यू ह्यूमन रिलेशंस विथ क्रिस एग्रिस एंड डॉगलास। उसके बाद ये तो हो गई बात न्यू ह्यूमन रिलेशंस की, क्योंकि मशीन एज आ चुकी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था और नए नए प्रिंसिपल्स एंड फॉर्म्स आ गए थे एग्जिस्टेंस में। ये सब हम जब एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट या एवोल्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट, जिसमें आप शॉर्ट में लिख सकते हो इकोलॉजिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने की, वो थी एफ.डब्ल्यू. ब्रिग्स की। और कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रोथ कैसे हुई, जो वुड्रो विल्सन से ही रिलेटेड है। और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बना, इसमें भी सीरीज इन्वॉल्व है बहुत सारी, ठीक। नेक्स्ट स्टेज थी हमारी पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मच इंटरेस्टेड इन पॉलिसी साइंस में, पॉलिटिकल इकोनॉमी में और पॉलिसी मेकिंग। तभी ड्वाइट वॉल्डो ने कंक्लूड किया दैट द सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैड बिकम एन आउटवर्ड क्रीडो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर बोथ टू बी सेपरेटेड। रॉबर्ट गुलाबोंगस्की ने बोला कि पॉलिसी अप्रोच दो थीम्स पे बिल्ड होती है, interpenetration of politics and administration at all or many levels and programmatic character। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंट है, इनके बीच में एक लिंक तो होती है, या तो एक लेवल पे या बहुत सारे लेवल पे। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल एक प्रोग्राम की तरह स्टेजेस में काम करता है और प्रोग्रामेटिक होता है। इसको एक फ्लो चार्ट के जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे फ्लो चार्ट में एक लेवल के बाद दूसरा लेवल आता है, सेम हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो इससे क्या हुआ, ये मोर इंटरडिसिप्लिनरी बना, सोशल रेलेवेंस मिली और स्कोप इसका एक्सपैंड हुआ, क्योंकि इसको पढ़ा गया आगे के सब्जेक्ट से रिलेट करके, दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करके इसको स्टडी किया गया। नेक्स्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस। तो न्यू एरा आया, एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए, न्यू थीम जैसे गुड गवर्नेंस आ गई, आरटीआई आ गई, ऑडिटिंग आ गई। इन सब ने क्या किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारे चैलेंजेस तो दिए, लेकिन उन चैलेंजेस से लड़ने का तरीका भी बताया हमारे थ्योरिस्ट ने, या जो हमारे थिंकर थे उन्होंने। और इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो इसे एक क्वेश्चन पेपर था लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड, वहां से शुरू किया गया था पढ़ना। इसका पहला डिप्लोमा कोर्स मद्रास यूनिवर्सिटी में हुआ।
इंडिया में डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉल एप्रीबाय रिपोर्ट की सजेशन पे 1954 में बनाया गया था और 1987 से ही इसे एज ऑप्शनल सब्जेक्ट टू सिविल सर्विसेज में पढ़ा जाता है। मतलब हमने आज क्या देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हमें एज अ सब्जेक्ट स्टडी करना है तो पहले ये समझना जरूरी है कि उसकी हिस्ट्री क्या रही है। जब हम किसी भी इंडिविजुअल के बारे में भी स्टडी करते हैं तो हम उसके बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं पहले कि क्या वो बैकग्राउंड थे जिसमें उसकी ग्रोथ हुई, वो बड़ा हुआ, और उसी पे डिपेंड करता है उसका नेचर। सेम अप्लाई होता है पब एड में। पब एड में until and unless you are aware of its evolution you cannot write a good answer in your mains। so यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 3 एंड होता है जो था डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।